Top of the hour, let's get you as far as this exclusive ground reports that we are picking. Earlier this morning at around 5 a.m, it is being suggested that the Enforcement Directorate, the one that actually looks into certain financial irregularities, the funding, all of that, as far as in the money laundering case that is now being concerned, that is now been filed by the Enforcement Directorate with regards to the Delhi blast case and the indication that when it comes to the Al Falah University and the trust and the people who are said to be affiliated or involved with the trust are also now being investigated. Around 25 different locations in Delhi and in adjoining areas across the country, what we are getting this initial information is that these searches, these raids are taking place, with the EC also going ahead to file a case in this regard. So let's connect with Bhavtosh on this. Well, Bhavtosh, good morning. Terror angle being investigated by the NIA. We're looking at several state polices and ATS also being involved. But as far as the financial angle is concerned, we're looking at the ED now going ahead to file a case. Yes, Amita, in fact, the Enforcement Directorate started raids early in the morning, at least at 25 locations linked to the university and its premises, as well as at the residences of its trustees and also the top management. Enforcement Directorate said that they have carried out raids and searches, but officially they have not issued any statement. At the same time, the Al Falah University and its management has not issued any statement. Earlier, they had denied all the charges that had been reported in the media. But the Enforcement Directorate sources have said that they claim that they were raising funds from legit sources, and from the fees that they had collected from the student is not adding up. That's what the government sources have said. They have said that the management itself is completely mired in various controversy, including the fact that some of them have been arrested or at least have been probed in chit fund scams. Yesterday also, one of their management executive was arrested because there was a non-bailable warrant against him. But ED has said that they are looking into wider case of financial misappropriation, and also forensic audit has been done of their finances. And that's the reason why searches are being carried out at 25 odd locations across Delhi, also in NCR and other parts of the country. All right, 25 different locations across the country that we're looking at as far as pan-India searches are concerned. But this terror den, as Al Falah is now concerned, the ED has now filed a case, and the lens is now on financial transactions. As top sources say that management says that money raised via fees, as far as not from any donation or any chit fund scam as being suggested, but what now, as far as the financial books of Al Falah is now concerned, they are likely to be audited as well. But ground situation that we're looking at as far as the trust of Al Falah is concerned, which is located in Delhi's Okhla, where these searches are also taking place. We'll get you this ground report where Bhavna is joining us live. And from early this morning that we are told that 25 different locations that are now under, as far as when it comes to the ED's investigation, where these searches are taking place. And on your screens, we're looking at the security deployment. सुबह ही बताया जा रहा है 5 बजे के करीब भावना कि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ईडी की टीम पहुंचती है और 25 ऐसे ठिकाने बताए जा रहे हैं जो अल फलाह या अल फलाह यूनिवर्सिटी से जो रिलेटेड ट्रस्टीज है उनके ऊपर यह कार्रवाई ईडी की तरफ से आज सुबह शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, इस वक्त हम ग्राउंड पर मौजूद हैं। जामिया नगर का ये इलाका है। अगर बात करें, सुबह 5 बजे का वक्त था सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस के साथ आज ईडी की जो टीम है, करीब दिल्ली के अगर बात करें तो जामिया नगर के इसी अल फलाह ट्रस्ट के बाहर आप तस्वीर देख सकते हो, और अंदर आज रेड डाली गई है। ना ही केवल इस ट्रस्ट पे, बल्कि जो यूनिवर्सिटी है इसके अलावा मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग, ट्रस्टी से जुड़े हुए लोगों के वहां पर ईडी की जो रेड है आज सुबह देखने को मिल रही है। सुबह 5 बजे से कुछ ऐसी ही तस्वीर यहां पर है। और अगर बात करें तो फिलहाल जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसके बाद एनआईए जो है टेरर एंगल से जांच करी, और अभी ईडी जो है वो पहुंची हुई है, क्योंकि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की जो मामले हैं वो सामने आ रहे थे। इसलिए आज पूरी जांच यहां करने के लिए ईडी की टीम ने यहां पर छापेमारी की है। अगर बात करें तो जिस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी 2014 से चल रही है और फाइनेंशियल एंगल से यहाँ पर जांच जो है वो ईडी कर रही है कि आखिरकार जो पैसे का इस्तेमाल था वो किन गतिविधियों में किया गया है, क्या गलत चीजों में किया गया है। क्योंकि आपको पता होगा कि अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और लाखों रुपए स्टूडेंट से लिए जाते हैं, और ऐसे में जो आतंकी पकड़े गए हैं और उमर जिसकी ब्लास्ट में मौत हो चुकी है, डॉक्टर था, और ये सभी डॉक्टर अल फलाह से ही जुड़े हुए थे। तो क्या पैसे बाहर से आ रहे थे, जो फंड बाहर से आ रहे थे, उसका इस्तेमाल जो है वो गलत गतिविधियों में किया गया? इसको लेकर पूरी जो जांच है फिलहाल वो की जा
जा रही है। इसी को देखते हुए यहाँ पर जो ईडी की टीम पहुंची हुई है, तमाम दस्तावेज को खंगालने की कोशिश की जाएगी, सबूतों को खंगालने की कोशिश की जाएगी। और इसी को देखते हुए ना ही केवल जामिया नगर के इस ऑफिस पे बल्कि ईडी की टीम ने 25 से ज्यादा यानी 30 के करीब ठिकानों पर आज छापेमारी की है। तमाम सारे जो ट्रस्टी इससे जुड़े हुए हैं, इसके अलावा अगर बात करें तो कई सारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं वहां पर भी अल-फलाह के से जुड़े हुए लोगों के वहां ईडी ने छापेमारी की। लंबे वक्त से यहाँ पर जांच चला था, ताबड़तोड़ कार्रवाई ना ही केवल दिल्ली में बल्कि देश के कई जगहों से इसके कनेक्शंस जो है वो निकल के आए। डॉक्टरों का एक बड़ा रैकेट जो था वो इस आतंकी गतिविधियों में शामिल था। इसीलिए आज ईडी की टीम ने यहाँ पर जो अगर बात करें तो जिस तरह से फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के मामले जो देखने को मिले, उसके बाद यहाँ पर आज पहुंची हुई है। भावना, आप हमें समझा सके जो तस्वीरों के साथ, क्योंकि आप हमें दिखा रही है कि यहाँ पे पुलिस डिप्लॉयमेंट काफी है, फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट काफी है। अल-फलाह से क्या अगर सिर्फ ट्रस्ट का ऑफिस लोकेटेड है या और भी कोई ट्रस्टीज की अगर बात की जाए तो वो उसी इलाके में रहते हैं? बिल्कुल, ये जो जामिया नगर का इलाका है, जब 2014 में यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई तब से यहाँ पर इस ट्रस्ट का ऑफिस है और यहाँ से अगर बात करें तो फाइनेंस से जुड़े हुए सारे काम जो है वो किया हुआ करते थे। और यहाँ पर कुछ दूरी पे करीब 200 मीटर दूरी पे जामिया यूनिवर्सिटी है और यहीं पर इस रोड पर अगर बात करें तो अल-फलाह ट्रस्ट का यहाँ पर ऑफिस है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में है, लेकिन ट्रस्ट का ऑफिस यहाँ पर है। यहाँ पर जितनी फंडिंग्स आती है वो यहाँ पर आती है। यूनिवर्सिटी का जितना पैसा है यहाँ पर जो उसका काम है जो वहां पर किया जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये जो इलाका है काफी रेसिडेंशियल इलाका है। कई सारे कोचिंग सेंटर है, यूनिवर्सिटी जामिया यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ यहाँ पर कई सारे खाने पीने की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट, होटल और रेसिडेंशियल इलाका, और यही पर ट्रस्ट का ऑफिस है और लंबे वक्त से यहाँ पर इस ऑफिस को चलाया जा रहा है। फिलहाल आप बाहर की तस्वीर देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हेवी डिप्लॉयमेंट है, क्योंकि सुबह 5 बजे जब ईडी की टीम पहुंची तो सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पर तैनात थे। और इसी तरह से अगर बात करें तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में भी इस वक्त ईडी की टीम जो है वो पहुंची हुई है, ऐसी जानकारी फिलहाल मिल रही है। और ट्रस्ट से जुड़े हुए, मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके वहां पर भी जो है ईडी की टीम पहुंची हुई है, जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और कोशिश ये की जा रही है कि जांच में ये पता चल पाए कि क्या कुछ और संदिग्ध लोग इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि ईडी यहाँ पर पहुंची हुई है, इसलिए फाइनेंस से जुड़े हुए कुछ खामियां होंगी, इसकी जांच के लिए पहुंची हुई है कि क्या जो फंड्स बाहर से आते थे क्या उसका इस्तेमाल गलत चीजों में किया गया, या यूनिवर्सिटी से जो पैसा आता था क्या उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया। क्योंकि काफी ज्यादा जो डॉक्टर्स है जो पकड़े गए, चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल हो या शाहीन हो या जो आतंकी ब्लास्ट में मारा गया डॉक्टर उमर हो, सभी डॉक्टर्स जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड थे। इसीलिए इस पूरे लिंक को खंगालने की कोशिश की जा रही है। तो जो पैसे का So on ground situation, we have exclusive ground report देख पा रहे हैं. This is this exclusive pictures that Bhavna is getting for us and our viewers right from the location where these raids are being conducted. सुबह के 5 बजे बताया जा रहा है. Early this morning about 5 a.m. where the ED teams reached as far as the Al-Falaah Trust is concerned, and it's been over 4 hours now. Remains to be seen as we are awaiting as far as a statement on part of the central agency that has been conducting these searches in 25 different locations.